کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش آپ سب دیکھ رہے ہیں اور یہ سلسلہ اب آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آج اللہ کی رحمت سے ہماری 9ویں ایپیسوڈ ہے، 9th قسط ہے، 8 پروگرام ہو گئے اور 8 ٹیمیں آگے پہنچ چکی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اب ان 8 ٹیموں کے بعد اب 9ویں ٹیم کی آج ہمیں تلاش ہے۔ آج ہمارے ساتھ جہلم اور شیخو پورہ کی ٹیمیں ہیں، اور ان دونوں ٹیموں کے درمیان ہم جب مقابلہ دیکھیں گے تو ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں دونوں ٹیمیں کس تیاری کے ساتھ آئی ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آئیں اور منچ پہ تشریف رکھیں۔ جی پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ دونوں ٹیموں سے تعارف بھی لیں گے، ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے، نام بھی پوچھیں گے، کام بھی پوچھیں گے، مگر اس سے پہلے ذہنی آزمائش کے پروگرام میں ایک سوال آپ سے کیا جاتا ہے جس کا آپ جواب دیتے ہیں، اور ہم پروگرام کے سٹارٹ میں اس کی قرآن دازی کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن دازی کی طرف۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سوال یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کس سن ہجری میں ہوئی؟ جنہوں نے درست جواب دیے ان کے چند نام پیش کر دیتا ہوں۔ بنت رمضان اتاریہ بورے والا، رشید رضا اتاری ڈیرہ اسماعیل خان، بنت کامران ساجد خانے وال عطا سبحانی اتاری لاہور، محمد حسن علی اتاری اکاڑا، بنت اقبال اتاریہ، بنت شوکت علی، بنت رفیق اتاریہ، محمد کاشف اتاری جامشورو، بنت رمضان علی پور، محمد شریف اتاری بلوچستان، بنت حسین کراچی۔ ان کے درمیان مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ قرآن دازی ہوگی، اور جامشورو سے ہیں محمد کاشف اتاری۔ آپ ہم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ جناب جام شورو سندھ تحفہ گیا ہے۔ ناظرین آپ کو اب دکھاتے ہیں کہ جو لاسٹ پروگرام ہوا تھا کس ٹیم کا کس کے ساتھ تھا، بلکہ 3 ٹیموں کا مقابلہ تھا۔ بڑا دلچسپ مقابلہ رہا، ایک ٹیم آگے گئی، کون سی ٹیم آگے گئی اور کیا نتیجہ رہا، آئیے دکھاتے ہیں۔ العلم نور، العلم نور۔ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور اب یہ مقابلہ پہنچ گیا ہے 8ویں قسط پر۔ العلم نور، العلم نور، knowledge is love۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سب سے پہلے خلیفہ کا نام بتائیں۔ شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سلاطین زمانہ آستاں پر سر رگڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہاری خاک در ہے تاج شاہاں یا رسول اللہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کراچی والوں کو اگر برابر کرنا ہے تو بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ کراچی والے کہاں پہنچے ہوئے؟ جناب نام نعمان علی ہے۔ جناب دنیا میں سب سے پہلے مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، صحیح۔ سب سے پہلے دنیا میں حضرت حابیل کو دفنایا گیا، صحیح۔ جوانان بہشت کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غلط۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا صوم ابراہیمی کہلاتا ہے۔ غلط۔ اللہ اکبر، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ 5 انویلپ میرے پاس ہیں۔ اچھا، ہر انویلپ میں 5 سوال ہیں، اس میں صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے۔ من سمت نجا کا مطلب جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ صحیح۔ خوشبو لگانا سنت ہے۔ صحیح۔ مولانا مصطفی رضا خان صاحب نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے ہیں۔ غلط۔ امام علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے۔ صحیح۔ محرم الحرام کی 9 تاریخ کو کشتی نوح کنارے پر لگی تھی۔ غلط۔ اللہ اکبر، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह, ये मुकाबले को कहां ले जाएंगे जनाब? फिर कराची वालों की बारी है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। गलत। नूर वाला आया है, कलाम अमीर अहले सुन्नत का है। सही। हुरूफे मद्दा को एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। सही। सारे बदन पर पानी बहाना गुस्ल के फराइज में से है। सही। कद कामत सला अजान में 2 बार पढ़ा जाता है। गलत। अल्लाह अकबर, 5 में से 5 सही जवाब दे दिए हैं। कोई पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा बस चले तो मैं इन दोनों टीमों को अगले राउंड में क्वालिफाई करवाऊं, मगर मेरे पास एक ही चांस है, या सियालकोट या कराची। अब एक और तरीका होगा, अब बकिया 2 रह जाने वाले इस्लामी भाइयों में से कोई एक इस्लामी भाई आगे आएंगे। यौम अरफा 10 जुल्हिज्जा को होता है। सही। लंबे नाखून शैतान की नशिस्त गाह हैं। सही। हजरत उस्मान का मजार मुबारक मक्के में है। गलत। बगदाद मुअल्ला यमन का मशहूर शहर है। सही। मस्जिद जुमा मदीने में है। सही। अल्लाह अकबर, 2 गलतियां कर गए हैं। यौम अरफा 9 जुल्हिज्जा को होता है और बगदाद मुअल्ला यमन का मशहूर शहर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ पहला और चौथा सवाल गलत किया। अब 3 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। कराची वालों के पास मौका है, 4 सही जवाब देकर मुकाबला जीत सकते हैं। 2 देंगे तो मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। 2 में से एक लिफाफा सेलेक्ट कीजिए। चले जनाब। आला हजरत का मजार बरेली शरीफ में नहीं है। गलत। आला हजरत 10 शव्वालुल मुकर्रम को पैदा हुए। सही। हजरत हमजा अशराए मुबशरा में से हैं। गलत। 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वाकया पेश आया। गलत। नमाज के 6 फराइज हैं। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। आज का मुकाबला कराची वाले जीत गए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। कमाल का मुकाबला। सियालकोट वालों ने बड़ा जोर लगाया, मगर जनाब इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जी, अब तक ज़हनी आजमाइश के सीज़न 15 के मुकाबलों का शानदार मुकाबला था और 2 बार टाई हुआ और बड़ी मुश्किल से यूं समझिए फ़ैसला किया और उसके बाद कराची की टीम आगे गई। रिक्कत अंगेज़ मनाजिर भी थे, आंखें अश्कबार भी थीं। ये कमाल है ज़हनी आजमाइश सिलसिले का। कभी चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं तो कभी याद मदीना में आंसू हैं। इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता है और इंशाअल्लाह चलता रहेगा। आइए नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम बताते हैं आपको। कुछ तब्दीलियाँ की हैं ज़हनी आजमाइश की। ये भी रीत रही है कि प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, सेगमेंट्स बदलते जाते हैं, दिलचस्पी बढ़ती जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। जनाब कौन से सेगमेंट्स नए आए हैं और उन सेगमेंट्स में क्या होगा आपको बताते हैं। आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जनाब इल्म नूर है, इश्क के बोल, आखिर दुरुस्त क्या है, गुलदस्ता हदीस, ये 4 सेगमेंट तो वही हैं जो अभी हमारे चल रहे थे। एक और नया सेगमेंट किबला अव्वल, सुभान अल्लाह, बैतुल मुक़द्दस के बारे में शानदार मालूमात हमें हासिल होंगी, बल्कि हम आपको वीडियो के जरिए बैतुल मुक़द्दस लिए भी चलेंगे इंशाअल्लाह। एक नज़र इधर भी, बहुत न्यू सेगमेंट, बहुत दिलचस्प सेगमेंट। और आखिरी सेगमेंट है सफ़र है मगर अकेले। दोनों टीमें पहले अपना अपना नाम बताएं, अपने शोबे बताएं और फिर उसके बाद हम सवाल शुरू करेंगे। जी जहलम वाले इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रज़ाक है और मैं जामिअतुल मदीना के 3रे साल का तालिब इल्म हूँ और मेरी सिलेक्शन जेलम में हुई है। अगले इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शफीक रज़ा तारी बिन मोहम्मद रफ़ीक तारी है और मैं जामिअतुल मदीना के 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरी सिलेक्शन जेलम में हुई। माशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अवैस रज़ा अत्तारी बिन मुदस्सिर महमूद अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना के दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ और जहलम एडिशन के अंदर मेरी सिलेक्शन हुई। माशाअल्लाह, ये 3 जहलम से इस्लामी भाई हम तक पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं, आइए आपको इसका एक खूबसूरत सा मदनी गुलदस्ता, एक वीडियो पैकेज जहलम के ऑडिशन का दिखाते हैं।
موجود ہیں پاکستان کے ایک خوبصورت شہر جہلم میں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ اگر کوئی تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دے گا، اسے بروز قیامت کس کے ساتھ اٹھایا جائے؟ اسے بروز قیامت مکہ مکرمہ کے کافر ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کون ہے جو بخشوائے گا مجھے تیرے بغیر؟ آئد آقا فرد اسیاں ہو گئی کر دے کرم، کون ہے جو بخشوائے گا مجھے تیرے بغیر؟ رہ جانا کی صفا کا بھی تماشا دیکھو، خوب مسعی میں با امید صفا دوڑ لیے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا۔ جناب جہلم والوں کا آپ نے آڈیشن دیکھا، میری بائیں طرف شیخو پورا پنجاب سے اسلامی بھائی آئے ہیں، آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالباسط اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ کے 4th ایئر کا طالب علم ہوں، اور میری شیخو پورا کے آڈیشن میں سلیکشن ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ابو بکر قادری بن اعجاز احمد ہے، اور میں جامعۃ المدینہ کے 7ویں درجے کا طالب علم ہوں، اور الحمدللہ میری شیخو پورا ٹیم میں سلیکشن ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہزیب اتاری بن محمد رزاق ہے، جامعۃ المدینہ میں درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں، اور شیخو پورا ٹیم سے میری سلیکشن ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے چلتے ہیں شیخو پورا اور دیکھتے ہیں وہاں آڈیشن کیسے ہوا۔ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے۔ شیطان سے حفاظت کی دعا حدیث مبارک میں کیا آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں سے کوئی سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو وہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ کلام کا مقطع سنائیے گا۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ابائی شفاعت کی ساتھ، ابائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز کہنے کی دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے اس کو سورۃ الکنز، سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ بھی کہتے ہیں۔ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ جناب یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ شیخو پورا کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی۔ ناظرین شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جناب دونوں ٹیموں سے 5-5 سوال ہوں گے، ہر سوال کا جواب 25 سیکنڈ کے اندر دینا ہوگا، 2 نمبر ملیں گے اگر صحیح جواب دیں گے، اور اگر غلط جواب دیا تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ مشورہ ضرور کیجئے مگر سیکنڈز کے اندر کیجئے۔ پہلا سوال جہلم والوں کے ساتھ، بچوں کی حفاظت کا وظیفہ بتائیں۔ ناظرین بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، آئیے آج وظیفہ بھی لے لیجئے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ کر لیجئے۔ بچوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے بچوں پر یا حافظ یا حفیظ 11 بار پڑھ کر اول آخر درشی پڑھ کر بچوں پر دم کر لیں،
इंशाल्लाह उन्हें हिफाजत का एहसास मिल जाएगा और दुश्मन उन्हें गवाह नहीं कर पाएगा। इंशाअल्लाह दुश्मन उन्हें इगवा नहीं कर पाएगा, हिफाजत का हिसार मिल जाएगा। अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ और 11 बार या हाफिज़ो पढ़कर बच्चों पर दम कर दें। स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, बाहर जाते हैं तो दम कर दिया करें सुबह शाम, अल्लाह के इन मुबारक नामों से बरकत मिलेगी। जहलम वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या कुरान पाक को बगैर समझे यानी तर्जमा के बगैर पढ़ने से कोई सवाब मिलता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये एक सवाल करते हैं लोग, आइए इस सवाल का जवाब लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स कुरान पाक को बगैर सोचे बगैर समझे बस उसकी तिलावत करेगा तो भी उसको तिलावत करने का सवाब ज़रूर मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कुरान मजीद की सिर्फ तिलावत करे, बगैर तर्जमे के पढ़े, समझ भी नहीं आ रहा क्या पढ़ रहा है, लेकिन कुरान की शान ये है कि तिलावत का सवाब फिर भी मिलेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या सकरात नज़ा का जो वक्त होता है में होने वाली तकालीफ पर भी मुसलमानों को अजर मिलता है? जी हाँ, नेक लोगों की रूहें भी तकलीफ से निकलती हैं और इन्हें इस तकलीफ पर अजर सवाब मिलता है, गुनाहों के कफ़ारे अदा होते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल-मौतु कफ़ारतुन लिकुल्लि मुमिन, मौत हर मोमिन के लिए कफ़ारा है। सकरात में शदीद तकलीफ होती है और मोमिन को इस पर अजर मिलता है और गुनाहों के कफ़ारे अदा होते हैं। जैसा कि हदीस पाक में है, अल-मौतु कफ़ारतुन लिकुल्लि मुमिन, यानी मौत हर मोमिन के लिए कफ़ारा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, कयामत से पहले इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। बताइए उनका मज़ार शरीफ कहाँ बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, जब आपका विसाल ज़ाहिरी होगा तो उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुजरा अनवर में आपको हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ दफन किया जाएगा। जी जनाब, आज भी सब्ज़ गुंबद के अंदर एक कब्र की जगह मौजूद है और जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दफन किए जाएंगे। अल्लाह अकबर, वो भी कैसा मंजर होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कब्र की बात चली है तो बताइए, क्या अगर कोई जिंदगी में ही अपनी कब्र तैयार कर ले तो फिर कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ज़िंदगी में अपनी कब्र तैयार रखने को बेजा फरमाया, क्योंकि आदमी नहीं जानता कि वो किस जगह मरेगा। आम आदमी को ये पता नहीं होता कि उसकी वफात कहाँ होगी, इसलिए अपनी कब्र तैयार करने का बज़ाहिर कोई फ़ायदा नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मगर ये बात आम आदमी की हो रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमने जाना, वो अल्लाह के नबी हैं और हदीसों में ये भी बताया गया कि उनका विसाल मदीना मुनव्वरा में होगा और उनकी कब्र नबी पाक के रोज़ा अनवर के साथ बनेगी। अल्लाह अकबर। जनाब, शेखुपुरा वालों से सवाल है, दिन और रात में हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ने की क्या फजीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स मुझ पर सुबह और शाम 3 बार दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह पाक पर हक है कि अल्लाह पाक उसके उस दिन और उस रात के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह करीम पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले हजर अस्वद किसने नस्ब किया? जहलम वालों से सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हजर अस्वद खाना काबा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नस्ब किया जब उन्होंने खाना काबा को तामीर किया। जनाब, ये हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है। जब काबे की तामीर हो रही थी, करीब ही एक पहाड़ जबल अबू कुबैस था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को कहा कि जाकर वहां से पत्थर लाए जाएं।
जब पत्थर उठाने गए तो फरिश्तों ने आपको बताया कि यहाँ एक पत्थर हजर अस्वद का भी है जो साथ ले जाएं, ये जन्नत का पत्थर है। और फिर एक और पत्थर की तरफ इशारा फरमाया जो बाद में मकामे इब्राहिम भी बना। तो क्या बात है, ये दोनों पत्थर जन्नती पत्थर हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज कज़ा करने का क्या वबाल है? शेखुपुरा वालों से सवाल है। लोग बड़ी तेजी के साथ, बड़ी आसानी के साथ नमाजें कज़ा कर रहे हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर एक भी नमाज कज़ा करेगा तो वो हज़ारों साल जहन्नम में रहने का हकदार है। जो नमाज कज़ा करता है तो वो हजारों साल जहन्नम के अजाब का हकदार है। अल्लाह अकबर। एक नमाज कज़ा करने का ये अजाब है। तो जो लोग रोज़ाना नमाजें कज़ा कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, पक्की नीयत जिसकी बनती हो वो हाथ उठाए कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। चले जनाब, अब वो सवालात होंगे जिनके ऑप्शंस इनको दिए जाएंगे मगर ये सिलेबस में नहीं है। जहलम वालों से सवाल, जन्नत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस सहाबी की किराअत की आवाज सुनी? हजरत हारिसा बिन नोमान, हजरत बिलाल हबशी, हजरत मुआज बिन जबल। नबी पाक ने किस सहाबी की किराअत की आवाज सुनी? हजरत हारिसा बिन नोमान, हजरत बिलाल हबशी, हजरत मुआज बिन जबल। ये सिलेबस से आउट सवाल है। कदमों की या तिलावत की जल्दी कीजिएगा, 4 सेकंड रह गए। हजरत मुआज बिन जबल। हजरत मुआज बिन जबल। कोई है जो यहाँ जवाब दे? नबी पाक ने किस सहाबी की आवाज, किरात की आवाज जन्नत में सुनी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हारिसा बिन नोमान रदी अल्लाह। हजरत हारिसा बिन नोमान रदी अल्लाह तआला अन्हु। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है और जेलम वालों से गलती हो गई है। तोहफा क्या देंगे इनको? इनको बगदादी तस्बीह तोहफे में दी। वाह भाई वाह जनाब। शेखुपुरा वालों सवाल है, इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला की वालिदा माजिदा की कुन्नियत क्या है? 3 ऑप्शन है, उम्मुल खैर, उम्मुल मसाकीन, उम्मे माबद। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा माजिदा की कुन्नियत उम्मुल खैर, उम्मुल मसाकीन, उम्मे माबद। जल्दी करेंगे, सेकंड गुजर रहे हैं। उम्मुल मसाकीन। उम्मुल मसाकीन। जनाब कोई है जो यहाँ जवाब दे? जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम उबैद रज़ा तारी और मैं हजरों से आया हूँ। हजरो ये अटक के पास है। अच्छा जी, सवाल क्या हुआ था? क्या बात है, ऐसे ही खड़े हो गए सलाम दुआ करने के लिए? तबीयत ठीक है आपकी? उम्मुल खैर। अच्छा, सवाल याद आ गया और जवाब भी दुरुस्त आ गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इनको सुन्नतें और आदाब किताब तोहफे में दी जनाब दोनों टीमों से गलती हो गई है, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम स्कोर बोर्ड की तरफ जाएंगे मगर उससे पहले हाजरीन से भी कुछ सवाल लेते हैं। जी शफीक भाई, आप ही सवाल करें तो सवाल तो करने दें। अच्छा जी, ये बताइए मुअल्लिमुल उम्मा यानी उम्मत का उस्ताद किस सहाबी का लक़ब है? जी कौन बताएंगे? मुअल्लिमुल उम्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। मेरा ख्याल है नहीं जवाब जी, दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी। और कोई? मुअल्लिमुल उम्मा, अच्छा सवाल है वैसे। चले, जो जवाब देगा वो खुद जाके मकतबे से जो किताब हासिल करना चाहे, और जो जवाब गलत दे वो भी तो दारुल इफ्तिवा वो चला जाए। 12 दिन के मदनी काफिले में जाएगा वो दारुल सुन्ना जाके काफिला पसंद कर लेना। गुलाम रसूल अत्तारी बलूचिस्तान की जिला बारकान से हजरत अबू हुरैरा। 12 दिन के मदनी काफिले में कब सफर करेंगे? जल्दी बताएं। अच्छा, कोर्स करने आए माशाल्लाह। इंशाअल्लाह जाएंगे माशाल्लाह। इंशाअल्लाह। चलें जी। आप बड़ा मुश्किल सवाल लाए वैसे आज। चलें जनाब।
मुअल्लिमुल उम्मा। लगता है पूरा बदरी काफिला तैयार कर लेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वज़ीर रज़ा खान नक्शबंदी बलोचिस्तान डेरा अल्लाह यार से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। आप कब जाएंगे काफिले में? हूँ ऑलरेडी बदरी काफिले में जब ही खड़े हो गए हैं। ठीक है, इनका कुछ जाना तो है नहीं। चले आखिरी पूछ ले, फिर आप बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद हसीब अत्तारी शहर लाहौर से हाजिर हूँ जी। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप कब जाएंगे काफिले में? अच्छा चलें। अच्छा जी, जो दुरुस्त जवाब है हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये दुरुस्त जवाब है। मदनी काफिला भी हमारा तैयार हो चुका है। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 8 नंबर जहलम वालों के, 8 नंबर शेखुपुरा वालों के। चलते हैं नाज़रीन अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब दोनों टीमों से हमने सवालात करने हैं और 5-5 अशार हैं। बहुत खूबसूरत अशार होते हैं, बहुत लुत्फ आता है। मैं सेगमेंट में बात करेंगे जहलम वालों से। नूहो खलीलो मूसाओ ईसा। नूह खलील मूसा ईसा सबका है आका नाम मोहम्मद। सबका है आका नामे मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नूह खलील मूसा ईसा। नूह खलील मूसा ईसा। नूह खलील मूसा ईसा। नूह खलील सबका है आका, सबका है आका नामे मोहम्मद। सबका है आका नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। शेखुपुरा वालों से सवाल शेर सुनेंगे। सारे चमन में लाखों गुलों में। सारे चमन में लाखों गुलों में गुल है हजार नामे मोहम्मद। गुल है हजारा नामे मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरी सहाबे सुखन से न मीम के नम से भी कम। बलीग बहरे बलागत बलाग लेके चले। बलीग बहरे बलागत बलाग लेके चले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदीना जाने जिनाओ जहां है वो सुन लें। जिन्हें जुनूनो जिना सुए जाग लेके चले। जिन्हें जुनूने जिना सुए जाग लेके चले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हदाई के बख्शिश में आइन से शुरू होने वाले कलामों की तादाद बताएं। आला हजरत के नातिया दीवान हदाई के बख्शिश में आइन से कितने कलाम शुरू होते हैं? 4 कलाम शुरू होते हैं। कोई एक कलाम भी बताएं। आरिज़े शम्सो कमर से भी हैं अनवरेरियाँ, अर्श की आंखों के तारे हैं वो खुश तरेरियाँ। अर्श की आंखों के तारे हैं वो खुशतर एड़ियां। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आरिज़े शम्सो कमर से है अनवर एड़ियां। आरिज़े शम्सो कमर से है अनवर एड़ियां। शो कमर से भी है अनवर एड़ियां। अर्श की आंखों के तारे वो खुश एड़ियां। अर्श की आंखों के तारे वो खुश मीम से शुरू होने वाले कलामों की तादाद बताएं। मीम से शुरू होने वाले कलामों की तादाद 9 है। 9 है। कोई एक कलाम बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, अब स्क्रीन पर शेर दिखाया जाएगा और आपको अगले मिसरे को दुरुस्त करना होगा या बताना होगा। दिखाइए जनाब। तेरे
اب یہ دوسرے شعر کا کون سا لفظ آپ دیکھنا چاہیں گے؟ ایک لفظ دیکھیں گے کوئی نمبر نہیں کٹیں گے، اگلا لفظ دیکھیں گے تو پھر نمبر مائنس کر لیا جائے گا۔ دوسرے کا پہلا دوسرے مصرے کا پہلا لفظ بتائیے۔ حیران۔ اے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، جواب درست دے دیا ہے۔ تیرے تو شیخ پورا والوں کو اسکرین پر شعر دکھایا جائے۔ وہ صرف لفظ وہ ہے۔ دوسرے کا پہلا کھول لیجیے۔ دوسرے کا پہلا لفظ دکھائیے۔ ادنا۔ وہ خلد جس سے اتریں گی ابرار کی بات، نشاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا سوال ہے جہلم والوں سے، دکھائیے اسکرین پر شعر۔ اس دوسرے کا پہلا، دوسری لائن کا پہلا لفظ دکھایا جائے۔ تاب۔ اس مردہ دل کو مزدہ حیات ابد کا دوں، تابو توانے جانے مسیحا کہوں تجھے، تابو توانے جانے مسیحا کہوں تجھے، جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری شیخ پورا والوں کی ہے، بڑا جلدی پہنچ رہے ہیں جناب یہ اشعار پر، کچھ اور مشکل کرنا پڑے گا۔ بہرحال دکھائیے۔ سنکی، اس کا تو میرا خیال ہے دوسرے لفظ کی بھی ضرورت نہیں۔ دوسرے کا چل سنکی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامانوں تر کی ہے۔ کیا بات ہے، سنکی وہ دیکھ۔ اب دیکھیں اس میں جو خوبصورت بات ہے نا کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، یعنی ہوا جب سنکتی ہے نا، تیز چلتی ہے، تو حضرت کہتے ہیں باد شفاعت، دیکھو اے رضا تیزی سے چل رہی ہے، اور یہ باد شفاعت جب چلے گی، ہوا چلے گی نا شفاعت کی، تو اے رضا اعمال برے ہونے کی وجہ سے دامان تر ہو گیا ہے۔ کسی کا دامن گیلا ہو جائے نا تو وہ ہوا کو ڈھونڈتا ہے کہ ہوا ملے تو میں اپنا دامن سکھا لوں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا استعارہ استعمال کیا ہے کہ اے رضا تیری آبرو بچ جائے گی، تیری عزت بچ جائے گی، جو گناہوں کی وجہ سے دامان تر ہے نا، گھبرا مت، شفاعت کی ہوا چل پڑی ہے، انشاءاللہ شفاعت کی ہوا چلے گی، دامن کی یہ جو تری ہے یہ سوکھ جائے گی، اور نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، سنکی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، آبرو رضا تیرے دامان ترتی ہے، آبرو رضا
सुभान अल्लाह। 2 सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं, हमने चलना है स्कोर बोर्ड की तरफ, मगर एक कॉल शामिल करते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद अली अत्तारी है, मैं मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे अंकल अब्दुल अत्तारी, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। मैं आज जेलम की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलते नादरीन सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का जो टाइटल है, जो टॉपिक है, बहुत खूबसूरत है। हमारे अकायद की दुरुस्ती के लिए, अकायद की पुख्तगी के लिए, बिलीव्स हमारे मजबूत होने चाहिए। उसका नाम है, क्या खूबसूरत नाम है, आखिर दुरुस्त क्या है। अब आज के इस सेगमेंट के अंदर एक कमाल की बात यह होगी कि दोनों टीमों के साथ साथ हमने किबला, मुफस्सिर कुरान, मुफ्ती दावत इस्लामी, मुफ्ती कासिम साहब दामद बरकातुहुम आलिया से भी सवाल पूछना है, उनका जवाब भी हमने सुनना है, और इंशाअल्लाह उस जवाब से हमने अपने हाजरीन से सवाल भी पूछने हैं। तो बड़ा खूबसूरत सेगमेंट और खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। पहला सवाल करेंगे जहलम वालों से। आज हमारा टॉपिक है ईसाले सवाब। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, जनाब ये ईसाले सवाब क्यों करते हैं, क्या मरने के बाद भी सवाब पहुंचता है, इसकी जरूरत क्या है। थोड़ा हौले हौले, आज बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि टॉपिक ही यही है, आखिर दुरुस्त क्या है। ईसाले सवाब किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने किसी नेक अमल का सवाब किसी दूसरे मुसलमान को पहुंचाना ईसाले सवाब कहलाता है। अपने किसी नेक अमल का सवाब किसी दूसरे मुसलमान को पहुंचाना ईसाले सवाब कहलाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या ईसाले सवाब करना जायज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत मुताहरा में अपने किसी नेक अमल का सवाब किसी मुसलमान मुर्दा हो या ज़िंदा हो उसको इसाल करना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि मुस्तहब है। जी जनाब, जायज है, मुस्तहब है। जिंदा को भी इसाले सवाब कर सकते हैं, दुनिया से जाने वालों को भी इसाले सवाब कर सकते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। इन्होंने कहा जायज है, मुस्तहब है, क्या इसके बारे में कोई हदीस भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है और मुझे गुमान है कि अगर वो मुझे कुछ सदका करने का कहती तो सदक़े का कहती, तो क्या मैं अगर उनकी तरफ से सदका करूँ तो क्या उनको सवाब पहुँचेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ। इसी तरह हज़रत साइद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, तो ऐसा कौन सा सदका है जो अफजल है जो मैं उनकी तरफ से करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पानी। तो हज़रत साइद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पानी का कुआं खुदवाया और फरमाया कि ये साइद की माँ के लिए है, यानी इसका सवाब उनकी रूह को पहुँचे। क्या बात है, पानी का सदका। और वैसे भी सदका नबी पाक ने फरमाया मरहुमीन के लिए। मुबारक हो उन बच्चों को जो मरने के बाद अपने वालिदैन के लिए मसाजिद बनाते हैं, मदारिस बनाते हैं, कुएं खुदवाते हैं, सदका जारिया के काम करते हैं। वसवसों में ना आइए, अपने मरहुमीन को याद रखिए। ये तरीका सहाबा का, ये तरीका हमें अहदीस से मिलता है। अल्लाह करे कि ये ऐसा रिवाज हमारे घर में बन जाए कि हम अपने माँ बाप का इसाले सवाब करें, और जब हम दुनिया से जाएं तो हमारी औलाद हमारे लिए इसाले सवाब करे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या इससे मुर्दों को फायदा पहुंचता है? शेखुपुरा वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, इससे मुर्दों को फ़ायदा होता है। नेक लोगों के दर्जात बुलंद होते हैं, गुनाहगारों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अगर किसी को अजाब और सज़ा हो रही हो तो उसके अजाब और सज़ा को ख़त्म कर दिया जाता है या उसमें तखफीफ कर दी जाती है, और ये सब अल्लाह तबारक व तआला के चाहने से होता है। सुभान अल्लाह। गुनाहगारों के गुनाह मुआफ़ होते हैं, नेक लोगों के दर्जात बुलंद होते हैं। अहले कब्र सख्ती या अजाब में हो तो उसमें तखफीफ कर दी जाती है, और ये अल्लाह की रज़ा के साथ, अल्लाह के चाहने से होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ईसाले सवाब पर हमें अकायदे अहले सुन्नत, इस्लाम के बुनियादी अकायद के बारे में मालूमात हुई, मगर अब थोड़ा सा मजीद टिपिकल क्वेश्चन, ज़ाहिर है ये स्टूडेंट्स हैं, इनसे इनके हिसाब से सवाल होगा। अगर मुफ्ती साहब से बात होगी तो सुभान अल्लाह, क्या बात है हमारे किबला मुफ्ती साहब की। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल ये है कि हमारे यहाँ उमूमन मरहुमीन को जुमेरात के दिन इसाले सवाब किया जाता है। अब ये सवाल थोड़ा सा किया जाता है कि कोई सवाब के लिए दिन मुकर्रर नहीं करना चाहिए, डे मुकर्रर करके इसाले सवाब नहीं करना चाहिए। तो आप बताइए आखिर दुरुस्त क्या है? दिन मुकर्रर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बगैर दिन मुकर्रर किए इसाले सवाब कर सकते हैं?
इसाले सवाब का मतलब है कि बंदा कोई नेक अमल करके अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करे कि ए अल्लाह इस अमल का सवाब फ़लाँ शख्स को या फ़लाँ अफराद को या सारी उम्मत को पहुँचा दे। तो गोया इसाले सवाब में बुनियादी तौर पे दो चीज़ें हैं, एक नेक अमल है और एक उसके मुतालिक दुआ करनी है। ना तो नेक अमल की कोई कैद है कि किस वक्त किया जाए किस वक्त ना किया जाए, ना दुआ के बारे में कोई कैद है कि किस वक्त दुआ की जाए किस वक्त दुआ ना की जाए। अल्लाह ताला ने बगैर किसी कैद के फरमाया वअमलू सालिहा, नेक अमल करो। और इसके अलावा कुरान पाक की सैकड़ों आयात जिसमें नेक अमल करने के बारे में फ़रमाया। दूसरी तरफ दुआ है, दुआ के बारे में फ़रमाया उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं दुआ मांगने वाले को जवाब देता हूँ जब वो मुझसे दुआ करे। तो जब भी बंदा दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ सुनता है, उसकी दुआ कबूल फरमाता है। तो इसाले सवाब जो है सवाब का अमल करना और उसके सवाब को आगे किसी तक पहुँचाने की दुआ करना है। और इन दोनों चीज़ों में कोई कैद नहीं है सिवाय इसके कि नेकी वो हो कि जिसका अपना ज़माना मुअय्यन है। जैसे अगर हज की नेकी है तो वह हज के दिनों में ही होगी, अगर रमज़ान के रोज़ों की नेकी है तो माह रमज़ान में ही होगी। ठीक है, तो लिहाजा ना तो अमल के लिए इस तरह वक्त मुक़य्यद है, ना उसे पहुँचाने के बारे में दुआ करने के लिए वक्त मुक़य्यद है। वक्त की जो तायीन की जाती है ये आप ऐसे समझ लें कि जैसे अल्लाह ताला ने हमें निकाह करने की, शादी करने की इजाज़त दी। कुरान पाक में कितनी आयात हैं, फरमाया फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, जो औरतें तुम्हें पसंद हैं तुम उनसे निकाह कर लो। अब निकाह की इजाज़त है, लेकिन उसके बावजूद हम क्या करते हैं, उसकी डेट फ़िक्स करते हैं कि फ़लाँ तारीख़ को निकाह होगा। वो डेट फ़िक्स करने का मकसद क्या होता है कि भाई लोगों को जमा होने में सहूलत है, वरना तो कोई किसी दिन पहुंच जाएगा कि जनाब सुना था आपके घर में शादी हो रही तो हम पहुंच गए, या कोई दूसरा बंदा पहुंच जाएगा। तो बात ये है कि ये जो तायीन होती है यानी दिन मुअय्यन करना, ये अपनी सहूलत के लिए होता है। अब इसाले सवाब के लिए क्या करते हैं कि हम अगर कोई शख्स फौत हुआ तो उसकी फ़ौत होने के अगले दिन इसाले सवाब कर देते हैं, या उसके 10 दिन गुज़रने पे इसाले सवाब कर देते हैं, या उसके 40 दिन गुज़रने पे इसाले सवाब कर देते हैं। रिश्तेदारों को मालूम होता है कि भाई फ़लाँ दिन इसाले सवाब होना है तो चले हम भी जमा होकर दुआ में शिरकत कर लेंगे। तो असल मकसद ये है। बाकी ये रहा कि जैसे जुमेरात का दिन मुअय्यन कर लिया जाता है कि लोग करते हैं कि जुमेरात को बतौर ख़ास जहन में रखते हैं कि इस दिन इसाले सवाब करें। तो बात यह है कि ये जो दिन की तायीन है, एक तो इस वजह से है कि भाई हर जुमेरात का बंदे के जहन में है तो बंदा अमल भी कर लेता है, वक्त मुअय्यन कर ले तो आदमी को याद भी रहता है, एक तो इस वजह से। दूसरा ये है कि शब जुमा यानी जुमेरात का दिन गुज़रता है और जुम्मे की शब आती है, ये शब जो है ये बड़ी बरकत वाली है, इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। जैसे जुम्मे के दिन के फ़ज़ाइल हैं, शब जुमा के फ़ज़ाइल हैं। तो चूँकि ये फजीलत वाला दिन है तो इसे बतौर ख़ास रख लिया कि यार इस दिन इसाले सवाब करेंगे। तीसरी बात यह है कि कई अहादीस ऐसी हैं जो बुज़ुर्गान दीन ने रिवायत की हैं कि शब जुमा जो रूहें हैं वो अपने घरों को आती हैं और आके कहती हैं कि ए अहले खाना तुम हम पे कुछ सदका करो, हमारे लिए कुछ सवाब भेजो। तो चूँकि ये रिवायात भी हैं, आला हज़रत अली रहमा का इसके ऊपर एक पूरा रिसाला है, एक पूरी किताब है, तो उनके पेश नज़र भी जो जुमेरात का दिन है इसे थोड़ा सा मुख्तस कर लिया जाता है। वरना ये दिन का मुअय्यन करना ऐसे ही है जैसे हम शादी के लिए दिन मुअय्यन करते हैं, जैसे हम मंगनी के लिए दिन मुअय्यन करते हैं, जैसे हम कोई बर्थडे मनाते हैं उसके लिए दिन मुअय्यन करते हैं, जैसे ज़िंदगी के हज़ारों कामों के अंदर दिन मुअय्यन करते हैं। और जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हफ्ते का दिन मुअय्यन किया था क़ुबा शरीफ जाने के लिए, हालांकि किसी भी दिन उस मस्जिद में जा सकते, या जैसे जुमेरात का दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम में वाज़ के लिए मुंतखब किया हुआ था कि आप जुमेरात को वाज़ फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसी दिन को मुकर्रर किया हुआ था। तो ये जो दिनों का मुअय्यन करना ये सहूलत के लिए है, शरीयत की तरफ से कोई कैद नहीं। माशाअल्लाह, कितने वाज़े अंदाज में इस चैप्टर को क्लियर कर दिया कि दिन मुअय्यन करने में कोई हरज नहीं है। बाकी बहुत सारे चीज़ों के लिए दिन मुअय्यन करने में किसी को कोई टेंशन नहीं होती। इसाले सवाब के लिए दिन मुअय्यन करें
तो न जाने क्या मसला है, लेकिन उम्मीद है कि आज वो मसला भी दुरुस्त हो गया होगा। नाज़रीन, अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से इसी मदनी गुलदस्ते के हवाले से सवाल करने हैं, देखें किसने कितना गौर से देखा है। बताइए कि मुफ्ती साहब ने दुआ के हवाले से क्या इरशाद फरमाया? मुफ्ती साहब ने इस मदनी गुलदस्ते में दुआ के बारे में क्या इरशाद फरमाया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम फैज़ान। मुफ्ती साहब ने दुआ के हवाले से फरमाया कि दुआ जब भी मांगी जाए वो कबूल है, उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, यानी कि जब भी बंदा दुआ मांगेगा उसका जवाब दिया जाएगा उसे। माशाअल्लाह जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। दुआ करते रहें, दुआ से जी ना चुराएं। तोहफा पेश करें ने भाई, क्या तोहफा दे रहे हैं? इनको सिरातुल जिनान इनको तोहफे में दी जा रही है। अच्छा, मुफ्ती साहब ने निकाह से मुताल्लिक कौन सी आयत तिलावत फरमाई? इस सेगमेंट में निकाह के हवाले से कोई आयत भी तिलावत फरमाएं जनाब, जल्दी से, निकाह के हवाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फन की माता बलकुम मिन निसा। जी, ये वाली आयत थी और इसकी कुछ आपने जुज़ सुना दिया। जवाब इनका दुरुस्त मान रहे हैं, तोहफा पेश करें। अब अगले कल से भी याद रखिएगा, यहाँ मौजूद मदनी गुलदस्ता गौर से देखिएगा, इसी में से आपसे सवालात भी होंगे। चलिए जनाब, चलते स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब, अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है गुलदस्ता हदीस। दोनों टीमों से हदीसें सुननी है, नबी पाक की प्यारी प्यारी बातें सुननी है। क्या बात है मेरे आका की। आला हज़रत कहते हैं ना, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है सुखन ना हो, सुखन है जिसमें सुखन ना हो, यहाँ है जिसका बयान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। आइए उसी मुबारक कलाम की कुछ झलकियां अहादीस की सूरत में सुनते हैं। दिखाइए जनाब, पहला सवाल जहलम वालों से क्या है? उर्दू में हदीस आ गई है, आपने इसकी अरबी हदीस सुनानी है और हदीस भी काफ़ी तवील है और उसका रेफरेंस भी देना है। हदीस में पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छे और बुरे हमनशीन की मिसाल मुश्क बेचने वाले और भट्टी झोंकने वाले की तरह है। लाजमी है कि मुश्क बेचने वाले से या तो तुम मुश्क खरीदोगे या तुम उससे खुशबू पाओगे, जबकि भट्टी झोंकने वाला तुम्हारे कपड़े या बदन को जला देगा या तुम उससे नागवार बू पाओगे। मसलुल जलीसी सालिह व जलीसी सुई का मसल साहिबिल मिस्की वकील हद्दादी ला यअदमुका मिन साहिबिल मिस्की इम्मा तश्तरीही औ तजिदु रिहहु वकील हद्दादी युहरिकु बदनका औ सौबका औ तजिदु मिन्हु रिहन खबीसतन। अल्लाहु अकबर। ये हदीस कहाँ पर मौजूद है ये बताइएगा। जिल्द है, सफ़ा नंबर 20 है और हदीस नंबर 2101 है। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 20 हदीस नंबर 2101। कमाल किया जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। इस हदीस के माशाल्लाह कमाल की हदीस है और बहुत खूबसूरत मैसेज है उन लोगों के लिए जो कंपनी, जो दोस्ती, जो गैदरिंग कौन सी रखते हैं। अच्छे बंदे की सोहबत के बारे में आका ने फरमाया जैसे मुश्क वाला है, खुशबू वाला है, खरीदे ना खरीदे खुशबू फिर भी फ्री में आती है। और बुरे दोस्त की मिसाल दी जैसे भट्टी और जिस तरह लोहार की दुकान होती है वहां से बदबू आती है, चिंगारी आती है, कुछ ले ना ले फिर भी इंसान के कपड़े बदबूदार हो जाते हैं। वो पंजाबी का शेर है ना, भले बंदे दी सोहबत यारों जिवें दुकान अतारा सौदा भावे मुल्ले न लइए हुल्ले आन हजारा। यानी अच्छे बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है, पैसे खर्च करें ना करें फ्री में खुशबू मिल जाती है। और वो कहते हैं बुरे बंदे दी सोहबत यारों जिवें दुकान लोहारा कपड़े पावे कुंज कुंज पइये
चिंगा पैन हजारां, जितने भी कपड़े बचाएं, लोहार की दुकान पे जाएं, बदबू आ जाती है, सुराख हो जाते हैं चिंगारियों की वजह से। अब गौर करना है सोहबत कैसी अपनानी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब शेखुपुरा वालों से कौन सी हदीस सुननी है? जनाब हदीस मुस्लिम शरीफ में है, किताबुल बिर, सफा नंबर 1387, हदीस नंबर 2564। ये प्लीज इसको वर्डिंग्स को इंग्लिश में लिखा करें, हर कोई पढ़ नहीं पाता हमारे नाज़रीन में से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरता अब्दुर्रहमान इब्न सख्र रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सख्र रदियल्लाहु ताला हज़रत अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ना तो तुम्हारे चेहरों की तरफ नजर करे, ना तो तुम्हारे जिस्मों की तरफ नजर करेगा और ना ही तुम्हारे चेहरों की तरफ नजर करेगा, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह पाक ना तो तुम्हारे जिस्मों की तरफ नजर करता है, ना तुम्हारी सूरतों की तरफ नजर करता है, बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। आज चेहरा साफ हो, कपड़े साफ हो, हम दिखने में अच्छे लगे, इसकी कितनी फिक्र है। दिल साफ है कि नहीं, दिल कहीं मैला या गंदा तो नहीं, इसकी फिक्र कितनी जरूरी है। नाजरीन ये बात हमें समझनी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब अब चलेंगे अगली हदीस की तरफ, जेलम वालों से सवाल करेंगे। जनाब हदीस अरबी में आपके सामने आ गई है और अब आपने इसको आपने तर्जमे में भी सुनाना है और इसका आपने रेफरेंस भी बताना है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना रजुलन रआ कल्बन याकुलु सरा मिनल आताशी फअखज़ रजुलु खुफ़्फ़हु फजअल यग़रिफ़ु लहु बि हत्ता अरवाहु फशकरल्लाहु लहु वअदख़लहुल जन्नह। जनाब नबी का माना बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स ने एक कुत्ते को देखा कि वो प्यास की वजह से गीली मट्टी को चाट रहा था, तो उस शख्स ने अपने मोजे में चुल्लू भर पानी से उस कुत्ते को पानी पिलाया, यहाँ तक उसको सिराब कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल को उसका अमल ये इतना पसंद आया कि उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। रेफरेंस बताएंगे। बुखारी शरीफ की जिल्द 1 है और सफ़ा नंबर 29 है। जिल्द 1 है, सफा नंबर 29 है और बुखारी शरीफ की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितना प्यारा मजहब है हमारा। एक कुत्ते के साथ अच्छा बर्ताव किया, अल्लाह को वो अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने बख्श दिया। जो इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव करें, मेहरबानी करें, मदद करें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ मिलेगा। मगर आज इंसानों के साथ भी लोग भलाई करने के लिए तैयार नजर नहीं आते। दुखियारे मुसलमानों की मदद अपनी जिंदगी की आदत बनानी चाहिए। नाजरीन शेखुपुरा वालों की तरफ चलेंगे और देखेंगे कौन सी हदीस है जिसके बारे में इन्होंने बताना है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल और सफा नंबर 7 है। क्या बात है, आज तो अहदीस बुखारी शरीफ की हैं जी। अन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला सलासु मन कुन्ना फीहि वजदा हलावतल ईमानी सलासु मन कुन्ना फीहि वजदा हलावतल ईमानी अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहिब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा अन यकून अहिब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरहा अन यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा बताएं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने 3 चीज़ें पा ली उसने तहकीक ईमान की मिठास को पा लिया। ये कि वो अल्लाह और उसके रसूल को इनके सिवा तमाम से महबूब रखे और किसी मर्द से सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए ही मोहब्बत रखे। और तीसरा बयान किया कि ईमान लाने के बाद कुफर की तरफ लौट जाने को ऐसा ना बुरा जानता हो जैसे कि बुरा जानता है कि उसको आग में झोंक दिया जाए। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया जिस शख्स में 3 चीजें होंगी वो ईमान की मिठास को पाएगा। नंबर 1, अल्लाह और उसके रसूल को तमाम जहान से, तमाम चीजों से ज्यादा महबूब जाने। और नंबर 2, किसी आदमी से मोहब्बत करे तो अल्लाह की रिजा के लिए करे। और नंबर 3, और जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर कुफर में जाने को इतना ही बुरा जाने जितना आग में झोंक दिए जाने को बुरा जानता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, प्यारी प्यारी हदीसें भी हमने जानी और सुनी। आइए चलते हैं, हमारा स्कोर बोर्ड हमें
क्या बता रहा है, स्कोर बोर्ड की तरफ भी चलेंगे। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 26 नंबर हैं। कमाल ये है कि दोनों टीमें बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। नया सेगमेंट, सुभान अल्लाह, किबला अव्वल, वो किबला अव्वल जो मुसलमानों का किबला अव्वल और मस्जिद अक्सा है, उसके बारे में यूनिक मालूमात, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में मालूमात नहीं होती, हमने उसको अपने सिलसिले में शामिल किया है। आइए शुरू करते हैं किबला अव्वल। सवाल करेंगे जहलम वालों से, क्या मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान में आया है? अगर आया है तो कहां आया है? जल्दी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। 15वें पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1। पाकी है उसे जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शेखुपुरा वालों से सवाल है, मस्जिद अक्सा को मस्जिद अक्सा क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चों को, तमाम लोगों को पता होना चाहिए। हम मस्जिद अक्सा को मस्जिद अक्सा क्यों कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर रूहुल बयान में है इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा से बैतुल मुक़द्दस मुराद है। और बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा को अक्सा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अक्सा बमाना अबअद के है। और चूँकि मस्जिद हराम से सिवाय मस्जिद अक्सा तक कोई और मस्जिद नहीं थी उस वक्त, तो इसलिए इसे अक्सा बमाना अबअद के नाम से मौसूम किया गया। उस वक्त बैतुल हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक बीच में कोई मस्जिद नहीं थी, इसलिए इसका नाम अक्सा पड़ा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मस्जिद अक्सा के करीब कितने सहाबाए किराम के मज़ारात हैं? हज़रत शद्दाद बिन औस और उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बैतुल मुक़द्दस के करीब कब्रिस्तान बाबुर रहमा में मदफून। बाबुर रहमा कब्रिस्तान जो मस्जिद अक्सा के करीब है, हजरत उबादा बिन साबित और हजरत शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ारात वहां पर हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद किस सहाबी ने मस्जिद अक्सा में सबसे पहले इमामत करवाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा जो है ये मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फ़तह होने के बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पर इमामत करवाई। हज़रत उमर फातिह बैतुल मुक़द्दस, ये वो अजीम हस्ती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने वहाँ इमामत करवाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए नाजरीन, अब आपको लिए चलते हैं बैतुल मुक़द्दस। इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा के बड़े खूबसूरत मनाजिर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मस्जिद अक्सा शरीफ के मेन दरवाज़े के सामने खड़े हुए हैं। बिल्कुल इस दरवाज़े की सीध में मस्जिद का मेहराब शरीफ है और ये बहुत बड़ा अहाता है मस्जिद का। यहाँ तकरीबन 10 दरवाज़े हैं जहाँ से लोग मस्जिद अक्सा की तरफ आते हैं और वापस जाते हैं। और ये बहुत बड़ा रकबा है, तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा नमाजी यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। जुमातुल विदा में तकरीबन ये अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने नमाज जुमा पढ़ी। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब यहाँ से मस्जिद अल-अक्सा के अंदर दाखिल होंगे। खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताउस रंग लाए। वो नग़्मा-ए नात का समा था, हरम को खुद बजद आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब हम मस्जिद अल-अक्सा शरीफ में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से मस्जिद का तूल व अर्ज़ बड़ी अच्छी तरह से नज़र आ सकता है। ये इज़्ज़ो जलाल अल्लाह, ये औजो कमाल अल्लाह, ये
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं इन्हें आपने बहुत सारे मकामात की ज़ियारतें करवाई है, मकामात मुक़द्दसा के नाम से आपका पूरा एक प्रोग्राम भी चला है। तो कभी आपका मस्जिद अक्सा जाना हुआ या उसका कोई क्लिप वगैरह आपने रिकॉर्ड किया हो तो? असल में बैतुल मुक़द्दस जाने की तमन्ना तो दिल में बहुत है, लेकिन हम पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को वहाँ हम नहीं जा सकते। मैं बहुत करीब तक गया हूँ। जॉर्डन में जब हम गए थे तो एक पुल का ही फासला था, बस बड़ी हसरत से हमने देखा कि बस फ़लस्तीन उस तरफ है और हमें इजाज़त नहीं थी जाने की। अल्लाह वो दिन लाएगा इंशाअल्लाह, तमन्ना बड़ी है कि अल्लाह वो दिन लाए कि मस्जिद अक्सा की ज़ियारत हो। और वहाँ मेरी बहुत बड़ी तमन्नाओं में से एक तमन्ना ये है कि वहाँ जाके 2 रकत नफल पढ़ना नसीब हो। और सुभान अल्लाह, बड़ी कमाल का मकाम है और जितना पढ़ते हैं उसके बारे में, ख़ास तौर पर जब मेराज की रात के बारे में पढ़ते हैं। और इस वक्त जो हमारे गज़ा के मुसलमान तकलीफ़ में है, अल्हम्दुलिल्लाह FGRF की तरफ से उनकी इमदाद शब व रोज़ जारी है और हम इंशाअल्लाह हमारा अपना पूरा एक डेलीगेशन जो है, पूरा एक काफ़िला यूँ समझ लें कि वहाँ भेजना चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर वो बैरून मुल्क से ही भेजना होगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को इजाज़त नहीं। तो इंशाअल्लाह जब वहाँ हमारे लोग जाएंगे इमदाद के लिए तो यकीनन और भी वीडियोज़ आएंगी। और फिर बैतुल मुक़द्दस, ये तो बहुत पुरानी वीडियो थी, मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहब गए थे, देखें सब ज़िमामे वाली थी। अब इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि जब वो लोग जाएंगे तो एक प्रॉपर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए और डॉक्यूमेंट्री भी बन जाएगी इंशाअल्लाह। चलिए जनाब, अब चलते हैं, हमारा वक्त हुआ है, कुछ हम नातख़्वानी करते हैं, अपने नेक आमाल का जायज़ा भी लेते हैं और आपकी कुछ कॉल्स भी शामिल करेंगे। दोनों टीमें आगे तशरीफ़ ले आएँ। आज रसाइल भी तकसीम किए जा रहे हैं, नेक आमाल के रसाइल भी लीजिए और इंशाअल्लाह नेक आमाल का यहाँ आगे टीम को भी दे दीजिए, दोनों टीमों को भी नेक आमाल का रिसाला दीजिए, तो इंशाअल्लाह नेक आमाल का जायज़ा यहाँ भी होगा। जी आइए ज़रा करवाइए, नेक आमाल का जायज़ा शुरू करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनके पास रसाइल हैं वो रसाइल के ज़रिए कर लें, वरना मोबाइल एप्लीकेशन भी है नेक आमाल की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोबाइल में मौजूद है। ये नेक आमाल की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इसके ज़रिए भी आप अपने नेक आमाल का जायज़ा ले लेंगे। जी अपने मोबाइल एप्लीकेशन या रिसाले निकाल लीजिए, इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी नीयतों के साथ नेक आमाल का जायज़ा करेंगे। अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कब्ल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, 1 मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक व चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से 1 दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब के पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सब को नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए
आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतने जनाब नेक अमाल का जायजा भी हो गया। अब आइए चलते हैं नाज़ शरीफ की तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह जब भी मेरे हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह जब भी मेरे हो संगे जबी मेरे हो संगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह जबी मेरी हो संगे तुम्हारा या रसूल ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह छूटे हाथ से सामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह छूटे हाथ से सामन तुम्हारा या
ना छूटे हाथ से तुम्हारा राया रसूल अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा या रसूल अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा या रसूल अल्लाह खुदा जीते जी कर हो नजारा या रसूल अल्लाह खुदा जीते जी कर हो नजारा या रसूल मेरे मेरे ख्वाब में आओ मेरे घर रोशनी हो मेरे तुम ख्वाब में आओ मेरे घर रोशनी होगी मेरी किस्मत जगा इनायत ये बड़ी होगी दिखा दो अपना चेहरा प्यारा या रसूल खुदा जीते जी कर हो नजारा या रसूल खुदा जीते जी कर हो नजारा या रसूल दीदार मुश्ताक है हर नजर दोनों आलम के सरकार आ जाइए चांदनी रात है और पिछला पहर दोनों आलम के सरकार आ जाइए मेरे गुलशन को एक बार महकाइए अपने जलवों की बारिश में नहलाइए दीदाए शौक को कीजिए बारवर दोनों आलम के सरकार आ जाइए आखिरी वक्त है एक बीमार दिल मचलने जगा शौक दीदार का बुझ न जाए कहीं ये चरागे सगर दोनों आलम के सरकार आ जाइए खुदा जीते जी कर हो नजारा या रसूल अल्लाह खुदा जीते जी कर लो नजारा या दिखा दो अपना चेहरा प्यारा या रसूल अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा या रसूल अल्लाह तेरी याद आई तड़पाती है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे मदनी
लालिया नैना छड़िया तेरिया बड़ा तड़पांदी लालिया नैना छड़िया कदी सरसे लगमाही तेरी दीद नु हसरत हिन बड़िया कदी सरसे लगमाही तेरी दीद नु हसरत हिन बड़िया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वक्त आखिर है चली जा रसूले अकरम एक झलक मेरे सुल्ताने मदीना दे दो दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह चाँद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आ जा फूटी हुई तकदीर लिए बैठे एक झलक दिखा जा मेरे मदनिया जा हम भी फूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं वरना इन आँखों का मसरफ ही नहीं है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे मदनी आका वरना इन आँखों का मसरफ ही नहीं है बस सरकार तुम्हारा रुखे ज़ेबा नजर आए खा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह दारा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह दारा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह दारा जीते जी कर लो नजारा या और तेरा दर हो मेरा सर हो सुकूने दिल मुयस्सर हो तेरा दर हो मेरा सर हो सुकूने दिल मुयस्सर हो फिरे कब तक ये अलजुमा हमारा रसूल अल्लाह फिरे कब तक ये अलजुमा हमारा मेरे तो आप ही सब कुछ रहमते आलम मैं जी रहा हूँ ज़माने आप ही के लिए फिरे कब तक ये अलजुमा हमारा रसूल अल्लाह फिरे कब तक ये अलजुमा
दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदारा जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। वाकई एक आशिक रसूल जब नबी पाक के कमालात को पढ़ता है, सुनता है, उनके हुस्न जमाल के बारे में जानता है, उनकी खूबसूरत सूरत के बारे में जब पढ़ता है, अल्लाह अकबर, ऐसा हसीन कायनात में कोई आया नहीं है। उनके जिक्र में इतना लुत्फ है तो उनके दीदार का आलम क्या होगा। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जलवे आज भी आम है नाजरीन, आज भी मेरे आका का दीदार आशिकान रसूल को होता है। हमें भी तड़प रखनी चाहिए कि नबी पाक का जलवा हमें भी नसीब हो जाए। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, वो जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। रात नमाज पढ़ के बावुज़ू दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोया करें, नबी पाक की याद में सोया करें। इंशाअल्लाह हम बड़े गुनाहगार सही, मगर तमन्ना हम भी तो रख सकते हैं ना कि जिनके उम्मती हैं, जिनका कलमा पड़ा है, कभी तो उनका जलवा हमें भी नसीब हो, कभी तो हम उनका दीदार करें। तमन्ना ज़रूर रखिए, तड़प ज़रूर रखिए, इंशाअल्लाह करम होगा। आइए कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं। मोहम्मद नईम अत्तारी, शोभा मोहब्बतें बढ़ाओ शेखुपुरा से अर्ज कर रहा हूँ। हबीब भाई माशाअल्लाह ये सिलसिला बहुत प्यारा है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस बार शेखुपुरा की टीम भी मदनी चैनल पर सवाल और जवाब के लिए ज़हनी आजमाइश में तशरीफ लाई। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ रखें और अब मुकाबले को इख्तिताम की तरफ लिए चलते हैं। दोनों टीमों के नंबर्स बराबर हैं, हमें जरा स्क्रीन पर नंबर भी दिखाइएगा। जनाब 30-30 नंबर हैं दोनों टीमों के। नया सेगमेंट शामिल किया है हमने और उस सेगमेंट का नाम है एक नजर इधर भी। जनाब इस सेगमेंट में क्या होगा, इस सेगमेंट में ये होगा कि दोनों टीमें गौर से देखेंगी स्क्रीन को और स्क्रीन को देखने के बाद इनको कुछ उसी स्क्रीन पे जो थोड़ी देर के लिए चीज़ें आएंगी सामने उसको याद करना होगा और उन्हीं से मुताल्लिक इंशाअल्लाह उनसे सवाल होंगे। तो गौर से देखना है। आइए देखते हैं एक नज़र इधर भी। गौर से देखिएगा। बहुत स्पीड से नाम आ रहे हैं, बहुत स्पीड से नाम जा रहे हैं। जनाब ये चले भी गए। अल्लाह अकबर। कितना गौर से देखा है और कितना याद किया है। जेलम वालों सवाल है कि बताएं कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम 2 बार आया है। इस स्क्रीन पर कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम 2 बार आया है। क्या बात है। अभी तो आया ही था और चला गया, इतना याद किसे रहा। जल्दी बताएंगे। हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अच्छा इनका कहना ये है। हाँ कोई है जिसने यहाँ गौर से देखा हो। आपके तो नंबर कटने नहीं है, आपको क्या मसला है। चले किसी एक से पूछ के देख लें। जी यहाँ एक हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं। अच्छा नहीं जनाब, इनसे गलती हो गई है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। शेखुपुरा वालों की बारी है। बताएं कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लक़ब के साथ आया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम? नहीं जनाब, हजरत आदम की वो कुन्नियत है जिसके साथ उनका नाम आया। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह नाम आया था। दोनों ने गलती की है। नंबर भी साथ कटवाते हैं, नंबर साथ ही लेते हैं। एक बार फिर स्क्रीन पर ये सारे नाम दिखाए जाएंगे, फिर गौर से देखें। एक एक सवाल और करना है आपसे जी, और थोड़ा हौले हौले चलाएं यार, बड़ी स्पीड से आप गुजार देते हैं। Knowledge is light.
अंबिया के नाम के साथ साथ कुरान पाक की एक सूरत भी थी इसमें। कुरान पाक की कौन सी सूरत थी? सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा अब बताइए, किसी नबी अलैहिस्सलाम की कुन्नियत भी थी इसमें? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या कुन्नियत थी? अबुल बशर। अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, पहली बारी में गलतियां भी साथ की तो दूसरी बारी में जवाबात भी साथ दिए। अगले सिलसिलों में इसको और हम खूबसूरत करेंगे और दिलचस्प करेंगे, और हमारे व्यूवर्स भी गौर से देखें, अपने साथ भी तो मुकाबला करें ना कि हमारी नजर कितनी तेज है। देखकर याद भी होता है या देखकर भूल भी जाते हैं। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकलने वाला मुहावरा तो सुना था, एक आंख से निकल देख करके दूसरी आंख से निकल तो नहीं जाता, तो इसको पकड़ के रखा करें। चलिए जनाब, चलते हैं आखिरी सेगमेंट से पहले स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 32 जहलम के हैं, 32 ही शेखुपुरा के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कौन सी टीम आगे जा रही है, कौन सी पीछे जा रही है। और इस सेगमेंट का नाम सब मिलकर कहेंगे, सफर है मगर अकेले। जी, दोनों टीमें अपनी अपनी जगह से एक इस्लाम भाई यहाँ स्वैप हो जाएंगे। जहलम वाले शेखुपुरा वाले एक इस्लाम भाई जहलम आ जाएं। 5-5 सवाल हैं और हर सवाल का जवाब सही कहना है या गलत कहना है। हमने इस सिलसिले को और थोड़ा सा खूबसूरत किया है, किस्मत का फैसला जरा और मजेदार हो। अब ये 6 लिफाफे मेरे पास हैं, जिस लिफाफे को आप सेलेक्ट करेंगे उसी से सवाल हम आपसे कर लेंगे। चले जनाब, ये लिफाफा इन्होंने मुझे दे दिया है, अब इससे सवाल करने हैं। और आपका नाम है जनाब अब्दुल्ला। अच्छा, हम जो सवाल करने जा रहे हैं, मुझे अपनी मजलिस को ये बताना होगा लिफाफा कौन सा है। तो पहले से लेकर 5 तक के सवाल होंगे। जनाब अब्दुल्ला भाई से सवाल करेंगे, सूरह आले इमरान में सबसे ज्यादा आयतें हैं? गलत। जिसकी नमाज जनाजा 3 सफों ने पढ़ी उसकी मगफिरत हो जाएगी? सही। सूरह इंसान सूरह दहर का दूसरा नाम है? सही। आप मेरी तरफ देखेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के चचाजाद हजरत हमजा के फर्जंद हैं? गलत। सही मुस्लिम इमाम मुस्लिम बिन हुज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तसनीफ है? गलत। जनाब देखना यह है कितने सही हैं और कितने गलत हैं। एक गलती की है हमारे जहलम के इस्लामी भाई ने। अब बारी है हमारे शेखुपुरा के इस्लामी भाई की। जनाब कोई भी लिफाफा सेलेक्ट कीजिए। जनाब इस्लामी भाई का नाम है अब्दुल बासित और सवाल नंबर 21 से लेकर 25 तक के सवाल इनसे किए जा रहे हैं। अब्दुल बासित से सवाल है, हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने 3 बार अपना आधा माल राह खुदा में खर्च किया। सही। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद का नाम मस्जिद अक्सा है? गलत। सैयदुल कुरा सब कारियों का सरदार हजरत उबई बिन काब का लकब है? सही। फतावा रज़विया का मुकम्मल नाम अल अताया अन नबविया फिल फतावा रज़विया है? सही। चुगलखोर क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा? सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। पहली बार मुकाबले में शेखुपुरा वाले आगे बढ़ते हुए। अब बारी फिर हमारे जहलम के इस्लामी भाई की है। नंबर कौन सा लिफाफा पसंद करेंगे? जनाब एक लिफाफा पसंद कर लिया है। अब इनसे 5 सवाल होंगे और देखना यह है कैसे जवाब देते हैं। सवाल नंबर कौन से इसमें? जनाब इसमें सवाल नंबर 16 से 20। अवेश भाई आपसे सवाल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के 15 चचा थे? गलत। जंगे बदर में कुल 10 सहाबा इकराम शहादत से सरफराज हुए? गलत। हजरत अबू हुरैरा से 5374 हदीस मरवी हैं? गलत। खैबर के मशहूर कलए 10 हैं? सही। सैफुल्लाह हजरत अली का लकब है? गलत। जनाब देखना यह है कितनी गलतियां की हैं। 2 गलतियां कर गए हैं हमारे जहलम के इस्लामी भाई। अब बारी शेखुपुरा के इस्लामी भाई की है। जनाब शाहजेब भाई देखिए कौन सा लिफाफा पसंद करते हैं। शाहजेब से सवाल होने हैं, 5 सवाल होने हैं और सही कहना है या गलत कहना है। सवाल नंबर 6 से 10। शाहजेब हज की 3 किस्में हैं? गलत। हजरत आमिर बिन फुहैरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आजाद करदा गुलाम हैं? गलत। अबू अय्यूब अंसारी का मशहूर लकब खादिमुन नबी है? गलत। कबीला बनी सालिम की मस्जिद में सबसे पहले जुमा अदा किया गया? गलत। हजरत अबी उबैदा बिन अल हारिस की कुनियत अबू मुआविया है? गलत। ना 5 गलत नहीं होते, आपने 5 शायद गलत कहे और 4 गलतियां कर दी हैं। अल्लाह अकबर।
जेलम के शेखुपुरा के इस्लामी भाई ने एक साथ 4 गलतियां की हैं। मुकाबला दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। इसका मतलब ये हुआ अब जेहलम वाले 1 नंबर से आगे हैं। दोनों में से एक पसंद करें जनाब, ये मुझे दे दीजिए। अब जेहलम के इस्लामी भाई शफीक से सवाल होना है और ये सवाल नंबर 11 से 15 तक के सवालात हैं। अबू बकर शफीक भाई, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 84 साल की उम्र में वफात पाई। गलत। आला हजरत के पीर मुर्शिद का नाम मौलाना नकी अली खान है। गलत। मोहम्मद बिन इदरीस इमाम बुखारी का नाम है। गलत। कुरान करीम की दूसरी मंजिल की इब्तिदा 6ठे पारे से होती है। सही। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पहले के जितने भी अरब हैं उन्हें अल अरबुल आरिबा कहा जाता है। सही। जनाब देखना ये है 4 सही जवाब दे दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ नाजरीन कि अब मुकाबला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। मेरे पास आखिरी लिफाफा है जिससे मैंने जवाब लेने हैं और वो लिफाफे में सवाल बताएंगे कि अब शेखुपुरा के इस्लामी भाई क्या करते हैं। इसका मतलब 5 के 5 सही जवाब देंगे तो मुकाबला बराबर होगा। एक भी गलती करेंगे तो मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। आप तैयार हैं? उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर की साहबजादी हैं। गलत। हजरत अस्वद को चूमना सही कहलाता है। गलत। कुरान पाक की सूरह अहज़ाब में अल्लाह अज़्ज़ा व जल के आखिरी नबी की अज़वाज मुतहरात को उम्मुल मोमिनीन फरमाया गया। सही। उम्मुल मसाकीन उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब है। सही। यौमुल फुरकान जंगे बदर के दिन का नाम नहीं है। गलत। अल्लाह 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। Unbelievable। एक बार फिर ये मुकाबला बराबर हो गया है। उस्कुरुल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। दोनों टीमों से फैसला करने के लिए जनाब आला हजरत के कलाम के मक्ते सुने जाएंगे और अब देखना यह है कि किसको कितने मक्ते याद हैं और जब जाके ये फैसला होगा। जनाब अब बारी बारी मक्ता वो शेर होता है जिसमें आला हजरत अपना तखल्लुस रजा पेश करते हैं, फरमाते हैं। जनाब बारी बारी इंशाअल्लाह जेलम वालों से गुजारिश है, पहला शेर पढ़ेंगे। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। सनकी वो देख बादे शफाअत के दे हवा ये आबरू रजा तेरे दामानो तर की है। ये आबरू रजा तेरे दामाने तर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। करीम अपने करम का सदका लई बेकदर पे न शर्मा तू और रजा से हिसाब लेना रजा भी कोई हिसाब में है। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। इतनी रहमत रजा पे कर लो ला यकरबुहुल बवार आका। ला यकरबुहुल बवार आका। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। राय खस्ता जोश बहरे अशियाँ से न घबराना कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। जवाब दुरुस्त दे दिया। ए रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ए रजा हर काम का एक वक्त है दिल को भी आराम हो ही जाएगा। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रजा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमो तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। और आह के इतना दिमाग लेके चले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बस खाम नवाए रजा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहिब्बा ना था नाचार इसी राह पर आ जाना। नाचार इस राह पर आ जाना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यही कहती है बुलबुल बाग जिना के रजा की तरह कोई सिहर बया नहीं हिंद में वासिफ शाह हुदा मुझे शौखी तबे रजा मुझे शौखी तबे रजा की कसम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इलाही सुनने रजा जीते जी के मौला ने सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की जबां तुम्हारे लिए। लिवा के तले सना में खुले रजा की जबां तुम्हारे लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सेकंड्स भी चल रहे हैं। हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल
در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا یہ نہ پوچھ کیسا پایا، جواب درست دے دیا ہے۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جواب درست دے دیا ہے۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان تم گیا۔ نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ در، شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر شاد ایڑیاں۔ ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، جواب درست دے دیا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے اس ہیں۔ سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا جب ہو۔ نبی مشکل کشا ہو، جواب درست دے دیا ہے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے کہ محمد۔ ہے رب سلم صدائے محمد، جواب درست دے دیا ہے۔ یا الہی جب رضا خواب گنا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، جواب درست دے دیا ہے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار۔ بول بالے میری سرکاروں کے، جواب درست دے دیا ہے۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں مصطفیٰ سلام۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جواب درست دے دیا ہے۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، جواب درست دے دیا ہے۔ کفِ دریائے کرم پہ ہیں رضا، 5 فوارے چھلکنے والے۔ 5 فوارے چھلکنے والے، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، جواب درست دے دیا ہے۔ صدقہ ان آیا کا دے چھے این عز علم و عمل، افوا عرفا آفیت احمد رضا کے واسطے۔ افو عرفا آویت کچھ بے، یہ اعلیٰ حضرت کے لیے احمد شجرے میں یہ ہے احمد رضا کے واسطے، جناب جواب درست دے دیا ہے۔ جناب کچھ سانس لیا ہے، سیکنڈز چل رہے ہیں، شیخو پورا والوں کی اے تو رضا نگاہ ستم جرم پہ گر لجائے، ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے۔ ساز طرب بجائے کیوں، جواب درست دے دیا ہے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے ہائے والے۔ ہائے اٹھ میرے دھوم مچانے والے، جواب درست دے دیا ہے۔ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب یہ نبی ہو گیا، مشکل یہ کشا شعر ہو۔ ہو گیا۔ زبردست۔ پار آئے دل بھی نہ نکلا تجھ سے تحفے میں رضا، ان سگانے کوہ سے تھی اتنی جان پیاری، واہ واہ۔ پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ، جواب درست دے دیا ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنکار ہے۔ کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنکار ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ یہ شعر ہو گیا۔ کیا مقدر آپ نے پایا اے امام احمد رضا، لا لکھنا نہ تسن۔ اعلیٰ حضرت کا شعر مقتا نہیں ہے نا، یہ تو اعلیٰ حضرت کی منقبت ہے، یہ تو سیکنڈ چلا دیے جائیں۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور۔ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، جواب درست دے دیا ہے۔ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، جواب درست دے دیا ہے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار یہ ہے۔ وار وار سے پار ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب کمال ہو نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں اسے بٹے۔ بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادائی کے بخشش کا عطر ہمیں پورا انہوں نے دے دیا ہے، کیا بات ہے۔ 12 سیکنڈ۔ اے رضا کل صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کا ممکن ہے۔ یہ ہو چکا ہے۔
اللہ اللہ اللہ. فخر آقا میں رضا ایک اور نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. آج جناب کمال کا مقابلہ ہوا اور جہلم والے مقابلہ جیت گئے ہیں. اللہ اللہ. ایسا آپشن ہوتا تو میں دونوں ٹیموں کو آگے لے جاتا. کمال کی ٹیم شیخو پورا والوں نے بھیجی. دل چھوٹا نہ کریں, ابھی ایک مقابلہ باقی ہے جس میں آپ کو پھر موقع ملے گا. اور ناظرین جیسے جیسے ذہنی آزمائش آگے جاتا جا رہا ہے ہمارے دلوں کی دھڑکن بھی بڑھاتا جا رہا ہے. آخری سوال آخری موقع پہ جا کے کوئی ایک ٹیم علیحدہ ہوتی ہے. بہرحال دونوں ٹیموں سے گزارش ہے منچ پہ تشریف لائیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی کوئز اپلیکیشن پر, جہلم یا شیخو پورا, آئیے دیکھتے ہیں. 53% جہلم, 46% شیخو پورا. اور ایسا ہی ہوا آج جہلم کے اسلام میں مقابلہ جیت گئے. جہلم کے یوں تو سارے اسلام بھائی کمال کے ہیں ماشاءاللہ, لیکن شفیق بھائی کو ہم انشاءاللہ یہ تحفہ پیش کریں گے. سب کی کارکردگی بڑی شاندار ہے. آگے آ جائیں. ایک سوال ناظرین آپ سے اور کر کے جائیں گے جس کا جواب آپ نے اگلے پروگرام سے پہلے دینا ہے. روزے کب فرض ہوئے؟ روزے کب فرض ہوئے اس کا جواب آپ نے دینا ہے اور کل پروگرام شروع ہونے سے پہلے دینا ہے. کل مقابلہ کس کا کس کے درمیان ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ایک ایسا پروگرام جس کے اختتام پر ملتا ہے علم دین کا ایک ایسا خزانہ جو معلومات میں کرتا ہے اضافہ اور بہت سے سوالات کا ملتا ہے حل. جی ہاں, ذہنی آزمائش سیزن 15 جس میں ہوں گی اسلام آباد اور گجرات کی ٹیمز آمنے سامنے. 27 نومبر 2023 بروز پیر رات 8:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب. Knowledge is light. Knowledge is light. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے.